So in this video we are talking about the result. How can you download the so we will have the two option to download your result. Okay, you just need to check the video till the end. Before that, I just want to clear one thing. Both linked which we will talk about in this video may occur due to heavy flow on the first second. For professional program, all certificate and result come mark sheet would be delivered to your address within 30 days. Okay, as I also mentioned in the last video, within 30 days, if the results come mark sheet would not be delivered, so you can mail to the exam@icsi.edu. Okay, so now what you need to do, you need to just enter the website, the main website of ICSI, that is icsi.edu, www.icsi.edu. So right now you can see the site is not getting uploaded, wherein you will able to see once the site will be open, it will be open like this. You will able to see your result over here. This I have taken from old, which were December 2019. For your example, it would be replaced to December 2021. First link would be available for CS Professional old and new syllabus, and after that the second link will be available for CS Executive old and new syllabus, which will be declared around 2 p.m. Okay, rest all the links will be same. You can check other links as well. Now once you click on this website, you will able to see this page only. This is the second link. This link is also icsi.examresult.net, also mentioned in the description box. Once you click any particular link, you'll be seeing you will be coming on this page, icsi.examresult.net. Okay, the headline would be changed ICSI exam result for December 2021, and you will able to see a selection examination. You need to select your examination, professional or executive, enter your roll number, you need to enter your registration and submit button. Thereafter you will be able to download your executive and professional result. So this is as of now. I hope you got your result. If you have any issue, so you can comment down below this video or any video of this channel. I'll reply you definitely. Rest I'll see in the next update. Till that time, very thank you to all of you. तो हमने जैसे पहले बात किया था कि जो है इसके अराउंड जो है जून के अराउंड में जो है आपका जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया जाएगा. सो रिलीज कर दिया गया भी है. सो इसकी पूरी चर्चा हम बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो अगर हम एग्जाम टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 से लेकर 5 बजे के बीच में 3 घंटे का आपका टाइम होता है. और आपके जो एग्जाम है वो बेसिकली 21 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. थर्सडे से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं. देन थर्सडे के बाद जो है फ्राइडे है, 22 को है, फिर 23 को है, 24 को जो है संडे को है. संडे को भी जो है इस बार एग्ज़ाम रखा गया है. मंडे को एग्ज़ाम नहीं रखा गया है अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, और प्रोफेशनल में भी मंडे को एग्ज़ाम जो है ये नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन संडे को जो है ये एग्ज़ाम रखा गया है. बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है. अगर आगे बढ़ते हैं तो 26 को भी आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, 27 को हो गया, 28 को हो गया और 29 को हो गया. ठीक है. तो 29 तक जो है आपके जो भी एग्ज़ाम हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और 30 को जो है आपके प्रोफेशनल के प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम चेक करते हैं जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो है आपके कंप्लीट एग्जाम हो जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा जो है सिलेबस को भी हमें ध्यान में रखना है. जो बच्चे जो है पहली बार जो है अपना एग्जाम दे रहे हैं, सो उनके लिए हो सकता है कि 2022 का जो सिलेबस है वो एप्लीकेबल हो. ये बहुत जानना जरूरी बन जाता है कि आपके लिए कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है. ठीक है. मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके लिए कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है. सिंपल सा जो है आपको अपना स्मैश पोर्टल में लॉगिन करना है. फ्रंट पेज पे ही आपको दिख जाएगा अपने डिटेल्स के साथ कि आपका जो सिलेबस है वो कौन सा है. फिर भी आपको नहीं दिखता है तो एक बार जो है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको जो सिलेबस है उसका जो लिंक है वो क्या कहाँ पर आप चेक करेंगे. ठीक है. अब डिटेल्स में अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉडल को लेकर हम चलते हैं, मतलब दोनों सिलेबस को लेकर हम चलते हैं. तो जो सिलेबस 17 और 22 का है, तो 21 तारीख को तो जो है आपको जो पेपर है वो सेम रहने वाला है. 22 तारीख को अगर आप चेक करें तो सिलेबस 2017 का जो सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट रहने वाला है, और यहाँ पे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज सेम ही रहने वाला है. इसके अलावा जो है 23 तारीख को सैटरडे को भी कंपनी लॉ
और अगर हम न्यू सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो नॉर्मल ही रखा गया है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं किया गया है आपके। केवल यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं 27 तारीख को जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं 2017 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहने वाला है जो आपको ओएमआर बेस्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसी 27 तारीख को जो भी बच्चे 2022 वाले सिलेबस में हैं उस उनके लिए जो है टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस जो है ये पेपर रहने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद जो है 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ओएमआर बेस्ड जो आपका टैक्स लॉ होता है वो जो है उसी दिन जो है बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट होने वाला है। किसका? बेसिकली ये 2022 वाले सिलेबस का। और इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं तो 29 तारीख को केवल जो है 2017 वाला जो भी सिलेबस के बच्चे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है 29 दिसंबर 2023 को। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जहां पर जो है 2022 में क्योंकि थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हुआ है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं 2022 वाले सिलेबस में, घबराना नहीं है। अगर आप 2022 के सिलेबस में हैं तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर को ही ख़त्म हो जाएंगे, 29 को भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये डिटेल्स जो है आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक जो पीडीएफ का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। बिना चेक किए हुए जो है कमेंट मत करिएगा कि सर पीडीएफ कहाँ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं, टेलीग्राम चैनल जो है ICSI लाइव अपडेट करके है, वहाँ पर नहीं है तो ज्वाइन करिएगा, तुरंत आपको जो है जो पीडीएफ है वो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम को। तो आपको पता है जून 2024 में जो है न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। अभी जो है केवल 2017 का जो सिलेबस है प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि हमने जो बात किया है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में न्यू सिलेबस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो अब जब भी आप रजिस्टर करते हैं CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में एज अ न्यू स्टूडेंट तो आपके लिए जो है 2022 का ही सिलेबस रहने वाला है। और बाद में कभी भी आप चेंज करते हैं एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल में तो आपके लिए जो है न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है, न्यू सिलेबस अवेलेबल है बेसिकली। तो आप कभी भी कर सकते हैं, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल दोनों में सेम ही आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम चेक करते हैं पहला पेपर आपका गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, कंप्लायंस एंड एथिक्स, जो मॉडल फर्स्ट में आता है। देन मॉडल सेकंड का सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस सेकंड मॉडल का। फिर थर्ड मॉडल का जो है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज में है। उसके बाद जो है मॉडल स्टॉक एक्सचेंज का हो गया। देन एडवांस टैक्स लॉ जो है मॉड्यूल फर्स्ट का रहने वाला है। एंड इसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, जैसे हमने बताया मंडे को कोई एग्जाम ये नहीं रहने वाला। यस, मंडे को कोई एग्जाम नहीं है। फिर आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर इंसॉल्वेंसी ये भी आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल सेकंड का। उसके बाद जो है एक आपको ओपन बुक एग्जाम होता है जो आपको मॉडल थर्ड में रहता है, वो भी आपको उसके बाद देखने के लिए मिलेगा। देन ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड ये सब जो है आपको मॉड्यूल फर्स्ट में देखने के लिए मिलेगा और एग्जाम जो है आपको इसके बाद। सो ये सभी डिटेल्स जो है आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी है कि कौन सा पेपर कब होना है और किस पेपर को कितना समय देना है। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज, ये आपका जो है सेकंड मॉडल का है। और इस तरीके का जो है इलेक्टिव जो बुक्स है जो ओपन एग्जाम रहेगा थर्ड मॉडल का एक, और उसमें से जो है आपको ये आपने जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से आपने एक सेलेक्ट किया होगा, ये सभी नहीं पढ़ने हैं आपको। आपको अपना चेक करना है कि मॉड्यूल थर्ड का आपका जो ओपन बुक एग्जाम है 5 पेपर में से आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, केवल वही आपको पढ़ना है और उसी का ही पेपर आपके एडमिट कार्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है नए अपडेट के लिए जो है आप चैनल के साथ बने रहेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डेफिनेटली आपकी मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।